Welcome to the another video. This one is the last experiment of BSc second semester. The aim of this experiment is to synthesize propranolol from 1-naphthol and isopropylamine. यहाँ पर हम 1-naphthol and isopropylamine की हेल्प से प्रोप्रेनॉल को सिंथेसाइज करते हैं. तो लेट्स गो थ्रू विद द थियरी. Propanol is a non-selective beta-adrenergic receptor antagonist used for antihypertensive drugs. It is commonly used to treat high blood pressure, angina, and certain heart rhythm disorders. It is also used to prevent migraine, headaches, and reduce the symptoms of anxiety. Now we will see its principle. Here, 1-naphthol reacts with epichlorohydrin in the presence of potassium hydroxide to form 1 2,3 epoxy propoxy naphthalene. Then the 1,2,3 epoxy propoxy naphthalene undergoes ring opening with isopropylamine to form propanol. This series of reaction outlines the synthesis of propanolol from 1-naphthol and isopropylamine using KOH as base. Now we will go through with the materials required for this experiment. First one is 1-naphthol, epichlorohydrin, potassium hydroxide, isopropylamine. उसके बाद इथेनॉल या टोलुइन का सॉल्वेंट, डिस्टिल्ड वाटर एंड एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट. अब हम देखेंगे एपरेटस जो यूज होते हैं इस एक्सपेरिमेंट में. तो सबसे पहले राउंड बॉटम फ्लास्क, मैग्नेटिक स्टीरर, रिफ्लक्स कंडेंसर, सेपरेटरी फ्यूनल, rotatory evaporator, and a Buchner funnel. Now we will go through with its procedure. So in the first step, formation of 1, 2, 3 epoxy propoxy naphthalene. तो हम पहले देखेंगे इसका प्रिपरेशन कैसे होता है. तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर देखेंगे हम. रिएक्शन मिक्सचर का प्रिपरेशन होता कैसे है. तो डिजॉल्व 1-naphthol 1 ml जो कि 144.17 ग्राम होना चाहिए इन अ सुटेबल सॉल्वेंट लाइक टोलुइन इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क एंड ईपीक्लोरोहाइड्रिन 1.2 मोल होना चाहिए जो ग्राम में 111.02 ग्राम होगा टू द फ्लास्क. And second step, addition of KOH. Prepare an aqueous solution of KOH 1.2 moles gram में 67.2 gram in distilled water. Slowly add the KOH solution to the reaction mixture while stirring vigorously. Third, reflux. Attach a reflux condenser to the flask and heat the mixture to 50 to 60 degrees Celsius. Maintain this temperature and stir the mixture for several hours, typically 4 to 6 hours. And now the fourth step, separation and purification. After the reaction is complete, cool the mixture to room temperature. Transfer the mixture to a separately funnel and separate the organic layer. Wash the organic layer with water to remove any remaining KOH and impurities. Dry the organic layer over anhydrous sodium sulfate and filter it. Remove the solvent using a rotatory evaporator to obtain the crude oil. In step 2, ring opening with isopropylamine. अब देखेंगे कि अगले स्टेप में आइसोप्रोपिलेमाइन का रिंग ओपनिंग होता है. इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इसमें भी होगा. हम पहले रिएक्शन मिक्सचर को प्रिपेयर करेंगे. डिजॉल्व द क्रूड 1,2,3 epoxy propoxy naphthalene in ethanol in a round bottom flask. In next step, addition of isopropylamine. Add isopropylamine जो 1 मोल होना चाहिए, ग्राम्स में इसकी वैल्यू 59.11 ग्राम होगी टू द फ्लास्क. द नेक्स्ट, स्टीयरिंग एंड हीटिंग. स्टीर द मिक्सचर एट रूम टेम्परेचर और स्लाइटली एलिवेटेड टेम्परेचर जो कि लगभग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए फॉर सेवरल आवर्स, टिपिकली 6 to 8 आवर्स. इन फोर्थ स्टेप, आइसोलेशन ऑफ प्रोप्रेनोलॉल. अब यहाँ पे प्रोप्रेनोलॉल का आइसोलेशन करना है. आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीट, evaporate the solvent under reduced pressure using a rotatory evaporator. Purify the product by
रिक्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ सुटेबल सॉल्वेंट जैसे कि इथेनॉल और बाई क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स. Before go through with calculations, we will see the reactions which used in this experiment. So this is the alpha naphthalon and this is the epichlorohydrin. अब यहाँ पे ये दोनों रिएक्ट करते हैं KOH के प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है 1 2 3 इपॉक्सी प्रोपॉक्सी नेप्थलीन. ये हमारा जो है ये 1 2 3 इपॉक्सी प्रोपॉक्सी नेप्थलीन है. उसके बाद ये आइसोप्रोपिल एमाइन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आइसोप्रोपाइल एमाइन. इसके प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करता है तो हमें यहाँ पर ये प्रोप्रेनोलॉल प्राप्त हो जाता है. ये है हमारा प्रोप्रेनोलॉल. तो ये सिंपल रिएक्शंस थे जो इस एक्सपेरिमेंट में यूज हुए थे. अब हम आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशंस की तरफ. तो सबसे पहले हम देखेंगे थियोरेटिकल यील्ड ऑफ प्रोपेनोलॉल. फॉर 1 मोल ऑफ 1 नेप्थॉल यूज्ड 1 मोल ऑफ प्रोप्रेनोलॉल इज एक्सपेक्टेड इफ ईच स्टेप प्रोसीड्स with 100% एफिशिएंसी. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोप्रेनोलॉल जिसका फॉर्मूला था C16H21NO2 वो 259.34 ग्राम पर मोल है. तो सबसे पहले हम थियोरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करते हैं. तो थियोरेटिकल यील्ड जो हमारा आता है वो 1 मोल इंटू 259.34 ग्राम पर मोल. हम 1 मोल को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 259.34 ग्राम आएगा. उसके बाद जो हम प्रैक्टिकल यील्ड देखेंगे तो एज्यूमिंग 75% ऑफ प्रैक्टिकल यील्ड होगा 0.75 इंटू 259.34 जिसकी वैल्यू आएगी 194.51 ग्राम. सो नाउ वी विल गो थ्रू विद द रिजल्ट्स. So here propranolol is synthesized and the theoretical yield is 259.34 grams and practical yield is approximately 194.51 grams. Assuming 75% efficiency. So किसी भी रिएक्शन के 100% efficiency तो होती नहीं है. तो हम जैसे थियोरेटिकल में यहाँ पे तो ले लिया था कि एक मान लिया था 1 मोल, बट यहाँ पे जो प्रैक्टिकली होता है तो उसमें हम 75% एफिशिएंसी एज्यूम किए हैं. तो हमारी जो प्रोप्रेनोलॉल की वैल्यू आई है जितनी मात्रा में ये बना है वो 194.51 ग्राम्स है. थैंक यू. तो इस हिसाब से हमारा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के सारे सीरीज का खत्म होता है. अब हम बात करेंगे अगले सेमेस्टर की.